Welcome students, 10th standard science 6th chapter life process. लास्ट सेशन में रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस पूरा कर लिया गया था और आज हम थर्ड लाइफ प्रोसेस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन से शुरुआत करेंगे. नाउ व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, व्हाई इज देयर अ नीड, ये पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिटेल में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आगे एक्सप्लेन कर लेंगे. सो पेज नंबर 94 दैट इज सेकेंड पेज पर मैंने आपको बोला था कि हर एक लाइफ प्रोसेस की क्यों ज़रूरत है, ये उन्होंने एक एक पैराग्राफ में दिया हुआ है. दिस पैराग्राफ इज रिगार्डिंग व्हाई इज न्यूट्रिशन essential for survival. This paragraph is regarding why is respiration essential. And now in this fourth paragraph we will discuss why there is a need of transportation in our body. We have previously seen how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform, right? हर एक body part अलग अलग functions perform करता है. We are familiar with the idea of specialized tissues and with their organization in the body of organisms. And now, it is therefore not surprising that uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissues, right? Uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissues. Oxygen आखिर कहाँ पे receive होगा, कहाँ पर exchange होगा? In which tissue? Alveoli, right? And food आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा थ्रू विलाई. ये दोनों पार्ट पढ़ाए गए थे. सो जैसे भी यहाँ पे बताया कि हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो फूड एंड ऑक्सीजन जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी कोई एक ही ऑर्गन या टिश्यू ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे. देन पूरी बॉडी को ज़रूरत है उनकी. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all other parts need them. And this situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. So food और ऑक्सीजन दो अलग अलग टिश्यूज या ऑर्गन्स रिसीव करने का काम करेंगे, लेकिन पूरी बॉडी को इनकी ज़रूरत है. So how will food and oxygen then be transported to all parts of the body? Through blood. Food and oxygen, wherever is consumed, gets dissolved in the blood, and through blood it is carried or transported to all parts of the body. So now we can move to the third life process of this chapter. और सबसे बड़ा, सबसे लेंदी लाइफ प्रोसेस अगर बोला तो यही होगा. So let's start with transportation. अब ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने शुरुआत ब्लड से ही किया है. We learned in class 9 that blood being a fluid, connective tissue. Blood is a connective tissue, right? And so today's first part is, what are the components of blood? There are 4 components of blood: red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. उनके बारे में इन शॉर्ट अगर देखा तो what is plasma? You just read करते जाइए information. Plasma is the liquid part of the blood, right? It's a 92% fluid. So blood is a liquid or liquid matrix called plasma, in which red blood cells, white cells and platelets are embedded. So liquid part of the blood is called as plasma. It contains 90% water, ध्यान रखना आपको. And it also contains all substances in the dissolved form like salts, glucose, amino acids, vitamins, urea, proteins, fats. And plasma carries all these dissolved substances from one part to other. And all other 3 are dissolved or immersed in it. Fine. So plasma is over. Now white blood cells, आपको डिटेल में इनके बारे में नहीं है, but just मालूम होना चाहिए, they are involved in immune system. Means what? These cells fight infections and protect us from disease. Then next, so white blood cells will be also called as soldiers of the body because they protect the body from the attack of disease causing germs, that is pathogens, right? And they are irregular in shape as like amoeba. Then platelets, हम इस पर डिटेल में आएंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक में इस पर एक अलग पैराग्राफ दिया. दे आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग. सो वेन एवर देर इज एन इंजुरी, जहाँ से भी ब्लड वेसल कट हो जाए और ब्लड निकलने लग जाए, तो दे क्लॉट द ब्लड इन दैट एरिया. एंड रेड ब्लड सेल्स,
they are involved in carrying oxygen. हमने last session में उसके बारे में discuss किया ही था. They carry oxygen from the lungs to all parts of the body, and it is actually the hemoglobin present in red blood cells which carry oxygen in the body, right? And they do not have any nuclei. ध्यान रखना है. It has been estimated about 3 million, याद रखना, 3 million red blood cells die every day. 3 million. But every day about 4 times the number are made in the bone marrow. So when we donate blood to save the life of a person, the loss of blood from the body can be made up very quickly within a day. This is because red blood cells are made in our bone marrow. So उसके related एक image यहाँ देख सकते हैं. Red blood cells, platelets and white blood cells are all produced in the bone marrow. That's the point. So with this, we have finished with the introduction, that who will actually do the job of transportation. Actually, blood will carry all the essential material, but there is a need of a pumping organ which will pump the blood to all parts of the body. Blood ऐसे ही all parts of the body तक flow नहीं होने वाला है. There is a need of a pumping organ, and for which we are now going to study human heart. So what is the message? Just an information. The human heart functions throughout a person's lifespan, pumping almost 200 million liters of blood. And a human heart roughly beats 2.5 billion times during a human lifespan, making it one of the most robust and hardest working muscle in the human body. Just imagine, beats 2.5 billion times. एक मिनट में कितने बार हार्ट बीट करता है? Think, answer. You know, in 1 minute, every time the heart beats, the blood is forced into the vessels, and the pulse rate of an adult person while resting is 70 to 72 per minute. तो ध्यान रखना है, 70 to 72 per minute pulse rate होता है. आप चेक कर सकते हो रिस्ट के अंदर. And the pulse rate is same as the heart rate. Just like heart beats, the pulse rate of a person is higher after physical exercise. Just remember, pulse rate of a person, this is pulse rate, is equal to number of heartbeats per minute. So you can just imagine, per minute अगर ऐसा है तो पूरे लाइफ स्पैन में वो फिगर उतनी होनी है, 2.5 बिलियन टाइम्स. फाइन. अब आते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर पे. जब छोटे थे तो हार्ट बोला गया था ऐसा रहता है करके, राइट? अब बड़े हो गए तो दिल भी कॉम्प्लिकेट हो गया है. सो नाउ दिस इज जस्ट इन जनरल placement or location of heart. You can just see this image. Placed between two lungs, roughly placed between two lungs. Well, the diagram which you have to draw is this. So छोटे थे तब हार्ट अच्छा था, right? This one. But आपको अभी 10th में आ गए तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा. So you have to clearly draw this diagram with all this labeled part, जिसके बाद ही पूरे मार्क्स मिल सकेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इन जनरल स्ट्रक्चर. ये भी पार्ट अभी मैंने कवर कर लिया. अब ये 2 पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे, राइट? द फर्स्ट पैराग्राफ इज जस्ट अ नॉर्मल स्ट्रक्चर. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है सिर्फ नॉर्मली है स्ट्रक्चर के बारे में, एंड द सेकंड पैराग्राफ इज द मेन वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. सो वर्किंग ही पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो टेक्स्ट बुक का ही पूरा ये पैराग्राफ रिलायबल है, आप नोट्स में भी देखोगे तो यही पूरा पैराग्राफ है इसमें. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अ फिस्ट. Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. ध्यान से सुनना ये point. Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers. Heart में chambers होते हैं अलग अलग,
इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. हमने 9th में वर्टिब्रेट्स 5 वर्टिब्रेट्स में हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं ये डिस्कस किया था. सो इन ह्यूमंस मैमलिया हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट्स to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. To prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. Now why there is a need to prevent? थोड़ा भी मिक्सिंग अलाउड नहीं होता, क्यों ऐसे अलाउड, मतलब प्रॉब्लम क्या है उसमें, थोड़ा भी मिक्सिंग क्यों नहीं चल सकता, पढ़ेंगे 2 मिनट में. द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen-rich blood is then pumped to the rest of the body. So this is just an introduction. पर पहले ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि बिल्कुल भी जिनमें भी 4 चेम्बर्ड हार्ट है उनमें बिल्कुल भी मिक्सिंग अलाउड नहीं है ऑक्सीजन रिच ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ. एंड वाई इज दैट सो, उसका आंसर उन्होंने यहाँ पर दिया है और एक बार रीड कर लेंगे. The separation of right side and the left side of the heart is useful to keep the oxygenated and deoxygenated blood from mixing. So to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing, our heart is separated into 4 chambers. Now what does this separation does? Such separation will allow a highly efficient supply of oxygen to the body. बिल्कुल भी mixing अगर नहीं हुआ, then means what? Highly efficient supply of oxygen will be there in the body. And this is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. आपको ध्यान रखना होगा, मैमलिया वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, एंड वी आर वार्म ब्लडेड यानी मतलब क्या, that our body temperature does not depends on the temperature of the environment. So hence हमारे बॉडी का या दिन भर में जो भी सबसे ज़्यादा एनर्जी यूसेज है वो इस काम में यूज़ होता है, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. याद रखना, हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जहाँ पे यूज़ होगी वो होगा टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. यहाँ पे भी दिया है विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. एंड एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, याद करो, इनसाइड द सेल. विच ऑर्गेनल डज द जॉब ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स? इट्स माइटोकॉन्ड्रिया. रेस्पिरेशन में बताया हुआ था. एंड पूरी तरह से एनर्जी रिलीज करने के लिए किसकी ज़रूरत थी? ऑक्सीजन की. याद है, रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज सो दैट वी गेट एनर्जी फ्रॉम इट. तो अगर मिक्सिंग होने लग गया तो हाईली इफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा हर एक सेल तक. माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन पूरी तरह से नहीं हो पाएगी एंड एनर्जी कम रिलीज होने लग जाएगी, एंड देन वी वोंट बी एबल टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर इन दैट केस. सो ऑक्सीजन का कैसे ये पार्ट जुड़ा हुआ है एनर्जी से, आपको ये रेस्पिरेशन में पढ़ाया हुआ था. सो बात ये कि such separation will ensure that oxygenated blood does not mix with deoxygenated blood, because we need a huge amount of oxygen, highly efficient oxygen. Only after that we can produce energy, and after that it will help us to maintain our body temperature. But in animals that do not use energy for this purpose, any cold-blooded animals, the body temperature depends on the temperature in the environment, and hence such animals like amphibians or reptiles have 3-chambered heart. ये हमने 9th में डिस्कस किया हुआ है. And they can tolerate some mixing of oxygenated and the deoxygenated blood streams. So उनमें थोड़ा मिक्सिंग हो भी गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनमें उतनी एनर्जी ही ज़रूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज दोज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहेगा. सो जब कम एनर्जी की ज़रूरत है, लेस एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल डू, एंड हेंस देयर हार्ट हैज़ 3 चेम्बर्स. और अब इसके आगे जो बात है वो फिशेस के बारे में दिया हुआ है, वो आज ही कवर करेंगे, लेकिन पहले ह्यूमन हार्ट पढ़ लेते हैं और फिर फिशेस में सर्कुलेशन कैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, वो डिस्कस किया जाएगा. सो टुडेज फर्स्ट पार्ट आई होप सबको भी क्लियर है, दैट आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. नाउ वी स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ हार्ट. अब वर्किंग ऑफ हार्ट में ये डायग्राम से कंपैरिजन में आपको पहले ये डायग्राम अच्छे से समझ के लेना. दिस विल परफेक्टली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्ट.
और आप पॉज करके ये पहले नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा हाउ आवर हार्ट वर्क्स। और फिर ये डायग्राम में एग्जैक्ट वर्किंग देख के आप फिर इस डायग्राम में वो सब विजुलाइज ईजिली कर सकोगे। सो दिस इज द डायग्राम टू शो द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जो यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ है। सो आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। यू कैन सी हियर आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। टेक्स्ट बुक का स्टार्ट कर लेते हैं रीड करना। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। और जस्ट अ मिनट, पहले ये वही डायरेक्ट वर्किंग समझाने से पहले मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज हार्ट। द हार्ट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप। ये हमने वो डायग्राम में देखा था। इट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स। आपका ध्यान पूरी तरह से यहाँ पे रहना चाहिए। It has 4 compartments. Here it is. Upper 2 are called as atria. Upper 2 are called as atria. That is a plural word. Just remember, upper chambers are called as atrium. And singular word is atrium, which are upper chambers. ध्यान रखना, upper chambers of heart. ओरल्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अपर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एज एट्रिया। सिंगुलर वर्ड इज एट्रियम। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो आप देख सकते हैं नाम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम आर द अपर चेम्बर्स, राइट। एंड द लोअर 2 चेम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। लोअर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। द 2 atria, upper chambers, will receive the blood from 2 main veins. They will receive the blood from the veins. डिटेल में हम आगे आएंगे। तो रिसीव करने का काम अपर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट करते हैं, विच इज एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। एंड वेंट्रिकल्स का काम क्या है? एंड द 2 वेंट्रिकल्स दे विल ट्रांसपोर्ट ब्लड टू एंटायर बॉडी एंड द लंग्स। सो ये है इन शॉर्ट पार्ट। अब हम डायरेक्टली वर्किंग से स्टार्ट कर लेते ताकि आपको आंसर समझ में आए। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? डायरेक्टली क्या बताया उन्होंने? लंग्स क्या करते हैं? ब्लड को ऑक्सीजनेट करेंगे, राइट। व्हाट डू यू नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? थिंक ऑन दैट। क्या आपको पता है उसके बारे में? सिंपल मीनिंग है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट आर कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड इट्स इन लंग्स वेयर फ्रेश ऑक्सीजन ऑफ एयर पासिस इनटू द ब्लड, राइट। सो लंग्स का काम है ब्लड को ऑक्सीजनेट करना। नाउ वंस द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज इट इज गोइंग टू बी सेंट टू हार्ट। व्हाई? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक सेल्स को ज़रूरत है उसकी। सो द पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट, सो इट हैज़ टू बी सेंट टू हार्ट। सो व्हेन द मसल्स ऑफ all the 4 chambers of the heart are relaxed, the pulmonary vein will bring the oxygenated blood, that is oxygen carrying blood, from the lungs into the left atrium of the heart. So here is the first process, that oxygenated blood is brought to the upper left chamber of the heart, that is left atrium, from pulmonary vein. अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ये होगा कि स्कूल में पढ़ा है तब तो ये पढ़ा है हमने कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय आर्टरीज, यहाँ पे नाम वेन कैसे दिया है? ध्यान से सुनो, विच एवर ब्लड वेसल will carry blood towards the heart, whichever blood vessel will carry blood towards heart will be named as vein. ध्यान रखो, towards heart. अभी अगर इस डायग्राम में देखें तो लंग्स से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इट इज़ नेम्ड एज वेन। एडिशनल नाम पल्मनरी जोड़ा ताकि कंफ्यूजन ना हो। हार्ट से लंग्स तक जो भी वेसल्स है उनको पल्मनरी वर्ड से जुड़ा हुआ है, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन। सो लंग्स से जिन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचाया, पल्मनरी वेन। और पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी आप देख सकते हो हार्ट की तरफ ही जा रहा है। नंबर 4 प्रोसेस देख सकते हो, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज़ हो गया और अब सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट किया। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, is carried to the heart again by veins. So any blood vessel which will carry anything towards heart, ये lungs से heart की तरफ vessel है और ये पूरी body organs से आने वाली vessel heart तक जा रही है।
हेंस इन दोनों को नाम दिया जाएगा वेन। आई होप सबको क्लियर हुआ ये। देन नेक्स्ट, any blood vessel which will carry blood away from heart. Away from heart will be called as arteries. अब वो देखते हैं कैसे। यहीं पे बात करेंगे कि oxygenated blood now has to be sent to all parts of the body and it will be sent by artery, so away from heart. और एक कि हार्ट पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद हार्ट ऑल्सो हैज़ टू पंप इट टूवर्ड्स द लंग्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं इट्स पल्मोनरी आर्टरी। सो एनी ब्लड वेसल विच विल कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट हैज़ टू बी वेन, इट्स पल्मोनरी वेन और यहाँ पर रेगुलर वेन। एंड एनी ब्लड वेसल विच विल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यहाँ से देख सकते हो हार्ट से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कैरिड बाय मेन आर्टरी, and from heart to lungs that is away from the heart is pulmonary artery. So do remember vessels from lungs to heart are named as pulmonary और आगे vein when it is towards the heart, when it's away artery. आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी। ये कन्फ्यूजन बहुत स्टूडेंट्स को आता है कि पल्मोनरी नाम क्यों दिया है, ये है आर्टरी तो इसको पल्मोनरी आर्टरी देना होगा। थोड़ा डिफरेंस जानना, थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए उनके नाम में। तो ये बात है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस नाउ। So when muscles of all the four chambers are relaxed, the pulmonary vein will bring oxygenated blood from lungs to the left atrium, which is the upper chamber. Now when left atrium contracts, जब ये upper left chamber, आपको ये chambers यहाँ पे भी देखने होंगे, ये देख सकते हो left atrium, pulmonary vein, first chamber. Now there is a valve-like structure and the second chamber is left ventricle. लेफ्ट में ध्यान दीजिए, हार्ट के ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपके हिसाब से आप जब डायग्राम को देख रहे हो तो ये आपका राइट साइड है, लेकिन आप अगर उल्टा हो जाओ तो आपके हार्ट का ये लेफ्ट रहेगा, करेक्ट। सो सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड स्टेप नाउ, व्हेन लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड is pushed into left ventricle through valve V1. अब यहाँ देख सकते हैं V1 नाम दिया वॉल्व को, और ये वॉल्व के जरिए it will be received, it will be sent to the lower chamber that is left ventricle. So it will expand while it is receiving the blood. Now when it contracts, जब ये left ventricle contract होगा, क्या होगा? The oxygenated blood is forced, oxygenated blood is pumped into the main artery. तो हार्ट से निकलने वाली जो मेन ब्लड वेसल है, द मेन आर्टरी इज कॉल्ड एज ऑर्टा, AORTA। ओके, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज द फर्स्ट प्लेस वेयर, लेफ्ट एट्रियम इज द फर्स्ट प्लेस वेयर द ब्लड विल बी रिसीव्ड बाय पल्मोनरी वेन्स। फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स इट विल मूव डाउन टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लोअर चेम्बर। And now when left ventricle contracts, जब ये contract होगा, the blood will be sent to all parts of the body through this main artery which is named as aorta, AORTA। आगे मैं बताऊंगा कि ये जो मेन आर्टरी है फिर ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर उनको नाम हम आर्टरीज देंगे। सो aorta is the main artery which initiates from the heart and then gets distributed to all parts of the body. So that's the third process. The main artery will then branch into smaller arteries which will go to different body organs. And the smaller arteries are also called arterioles which further branch into capillaries. तो अगर उसकी इमेज आपको दिखाने जाए, जस्ट मिनट, कैसे ये डिवाइड होता जाता है। हियर इज द इमेज, राइट साइड में देखिए, द मेन आर्टरी इनिशियली फ्रॉम द हार्ट इट वाज aorta, then artery, then as it distributes it's called arteriole, और ये arteriole जब कोई organ के यहाँ पे आ जाता है then distributes into very tiny blood vessels which are called as capillaries। तो हम इस पर आगे आएंगे। Fine, now we move to the fourth process. The main artery carries blood to all organs of the body like head, stomach, intestine, liver, kidney,
And when the oxygenated blood passes through the capillaries of the body organs, then it gives oxygen to the body cells. And since the blood will lose oxygen here, the blood has been deoxygenated. The blood will also give digested food and other dissolved material to each and every cell. And at the same time, carbon dioxide produced as a waste material during respiration enters into the blood. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो अलग अलग सेल्स से एज अ वेस्ट जनरेट हुआ है, अब ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा. नाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज़ टू मूव अप फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स विल एंटर इनटू द मेन वेन कॉल्ड वेना कावा. जैसे मेन आर्टरी का नाम था एओर्टा, वैसे ही मेन वेन का नाम है वेना कावा. पर यहाँ पर तो इनिशियली वो सब अलग अलग छोटे छोटे वेसल्स होंगे, जैसे अभी आपको इमेज दिखाया एक साथ. एक सेकेंड, ये देख सकते हो कि मेन आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट्स इनटू आर्ट्रियोल एंड फिर वो और टाइनी वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं. देन कैपिलरीज में ऑक्सीजन सारे सेल्स को देने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करने के बाद, जब ये वेसल्स जुड़ते जाएंगे टू इनटू बिगर साइज, इट्स कॉल्ड वेन्यूल. एंड व्हेन दे ऑल कंबाइन वी कॉल इट एज वेन. एंड द फाइनल वेसल, सबसे बड़ी वेन हार्ट तक पहुंचने वाली है, वो होगी वेना कावा. आप इस डायग्राम में भी वो देख सकते हो. इस डायग्राम में द सेकेंड हाफ इज मेंशन्ड हियर. सो फर्स्ट यू कैन सी unoxygenated blood comes from the top of the body through superior vena cava, and unoxygenated blood comes in from the lower body through inferior vena cava. Unoxygenated blood enters the atrium on the right side of the heart. तो ये यहाँ पर ही दिया देखो, deoxygenated blood now from all body organs will enter upper right chamber of the heart, which is called as right atrium. Now when right atrium contracts, the deoxygenated blood is pushed down. Arrow देख सकते हैं. The deoxygenated blood is pushed into right ventricle through the valve V2. And when the right ventricle contracts, the deoxygenated blood is pumped into the lungs. देख सकते हो away from the heart है, तो artery word आना चाहिए. बस पल्मोनरी, बिकॉज लंग्स और हार्ट के बीच में जो मूवमेंट है उनमें हमको पल्मोनरी वर्ड जोड़ना है. सो इट विल बी पम्प्ड इनटू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, एंड इन द लंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीजेस इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब्स फ्रेश ऑक्सीजन. सो द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड अगेन, एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड is again sent to the left atrium by pulmonary vein, and this process is repeated continuously. So in this way, blood keeps on circulating in our body without stopping, due to which all body parts keep on getting oxygen, digested food and other materials all the time. अब एक पूरी साइकिल में सोचो जरा, एक पूरी साइकिल में ब्लड हार्ट में कितनी बार गया? इट ट्रैवल्ड थ्रू हार्ट ट्वाइस. कैसे देखो, लंग्स से लंग्स तक ब्लड हार्ट में 2 बार जा रहा है. पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आ रहा है, इट पंप्स, इट ट्रैवल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देन अगेन गेट्स डीऑक्सीजनेटेड एंड रिसीव्ड इन द हार्ट फर्स्ट. देख सकते हो सेकेंड टाइम आ गया हार्ट में, फिर यहाँ से पंप होकर वो लंग्स तक भेजा जाएगा. सो a circulatory system in which blood travels twice through heart in one complete cycle of the body. A circulatory system in which blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation. ध्यान रखना, is called as double circulation. So in human circulatory system, just a minute. So here is a clear image of double circulation. A circulatory system in which, the definition of in a circular system, the pathway of blood from heart to lungs is called pulmonary circulation.
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हार्ट से लंग के बीच में जो भी सर्कुलेशन होगा यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। लंग्स, हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स। ओके, सो अब इस डायग्राम से रिलेटेड whatever circulation happens from heart to lungs or from lungs to heart is called as pulmonary circulation। और इसीलिए pulmonary word जुड़ा हुआ था। Which blood vessel, सोचो जरा, which blood vessel will bring oxygenated blood from lungs to heart? Since it's towards heart, pulmonary vein. Any blood vessel which will bring blood towards the heart is vein, pulmonary vein. And the blood vessel which will carry deoxygenated blood from heart to lungs will be called as pulmonary artery. That is pulmonary circulation. And the pathway of blood from heart to the rest of the body and back to heart is called systemic circulation. Is called systemic circulation. तो वही इमेज में दिया हुआ है, Just a minute. देख सकते हैं, एनी सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट इज पल्मोनरी सर्किट, बस बताने के लिए वो सर्किट वर्ड यूज किया। एंड एनी सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू हार्ट इज कॉल्ड सिस्टेमिक। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एंड सिंस ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन अ साइकिल, it is called as double circulation. So in humans, double circulation is seen, right? The animals such as mammals and birds have four-chambered heart. They consist of two atria and two ventricles. जैसे यहाँ देख सकते हो, upper two chambers atria, lower two chambers are called as ventricles. So in the four-chambered heart, the left and right side of the heart are completely separated by a wall which is called as septum. तो आपको यहाँ पे डायग्राम से समझ के लेना होगा। ये देख सकते हो, the main wall in between this left chamber and right chamber is called as septum. It's a dividing wall. Okay. So this way we have finished with this part. एक बार वापस पूरा रिवाइज कर लेते हैं थ्रू दिस डायग्राम, ताकि आंसर आपको टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में क्लियर हो सके। मैंने जो बताया था वो लेंथी है ज़्यादा, उतना डिटेल में आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। डायग्राम सामने है, रीड करते जा रहे हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स विल कम टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। नाउ व्हाई इज द वर्ड थिन वॉल्ड यूज्ड, आगे देखेंगे। अपर चेम्बर्स में आप देख सकते हो, आपको थिन ड्रॉ करने वॉल्स, बट लोअर चेम्बर्स में देख सकते हो थिक कितना हो चुका है। So you have to take care of that while drawing the diagram. Okay. So oxygen-rich blood from the lungs will first enter heart through pulmonary veins. The first upper chamber of the heart, that is left atrium, will receive it. The left atrium will relax when it is collecting this blood. It then contracts. So ये जब contract हुआ, the blood will now be sent to the lower chamber of the heart, that is left ventricle. It then contracts while the next chamber, left ventricle, relaxes so that the blood is transferred to it. Easy? And now when the muscular left ventricle contracts, देख सकते हो pathway, arrow देखो, यहाँ से blood पहले यहाँ पे आ गया, और जब left ventricle contract करेगा, the blood is pumped out to the body through main artery named as aorta. So easy, इतने में उन्होंने खत्म कर दिया left chamber का पूरा काम। Now from the rest of the body, पूरे बॉडी से घूमने के बाद, where will the blood be received? Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right, which is right atrium. As it relaxes, it will receive the blood. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, right ventricle, dilates. So lower chamber is right ventricle, it dilates. Dilates मतलब it will receive the blood. Getting? So जब right atrium contract करता है, blood नीचे की तरफ shift होगा और right ventricle will dilate. And this transfer blood
to the right ventricle, which in turn फिर यहाँ से आप देख सकते हो ये एरो से through pulmonary arteries it will travel to the lungs. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. अब आता है point. Why are ventricles thick-walled? Since ventricles have to pump the blood into various organs, they have thick muscular walls. Then atria do. ये 1 mark question है, orals में पूछ सकता हूँ मैं. That since ventricles कौन से chamber को real में pump करना था? Upper chambers have the job of just receiving the blood from the lungs and from the other parts of the body. The main pumping work is to be done by the lower chamber, right? Left ventricle को पूरे body में pump करना है और right ventricle को pump करके lungs तक पहुंचाना है. So since ventricles have to do the job of pumping, they have to do it with more pressure. They have thick muscular walls than the atria do. Getting? और ये walls आप देख सकते हैं ये diagram में बोलो. ये डायग्राम में भी तो ये जो वॉल्व्स हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, व्हाट इज देयर फंक्शन? वॉल्व्स विल एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. सो वॉल्व्स का काम क्या है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सके. और इनिशियली तो होगा ही, लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड डेफिनेटली एक डायरेक्शन में लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. लेकिन जब अब लेफ्ट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वापस पीछे लेफ्ट एट्रियम में जा सकता है. तो ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो ब्लड सीधा आर्टरीज के जरिए मेन बॉडी ऑर्गन्स में चले जाए. सो वॉल्व्स विल एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस इज द आंसर विच यू हैव टू राइट विद दिस डायग्राम. सो आप डायग्राम ये प्रेफर कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो प्रेफर this diagram which is again easy. शुरुआत में 2 बार डिफिकल्ट लगेगा पर प्रैक्टिस करनी होगी. सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड द कंसेप्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन. जो एग्जाम में अगर आया तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. सर दर्द बढ़ रहा है डायग्राम्स का. जिनका अच्छा नहीं है डायग्राम ड्राइंग तो उनको प्रॉब्लम आएगी. आप देख सकते हैं कैसे हार्ट से ब्लड 2 बार ट्रैवल कर रहा है. फर्स्ट फ्रॉम लंग्स, पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स विल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फ्रॉम हियर इट विल ट्रैवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कैपिलरीज का डायग्राम. फिर वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी ब्रॉट इन द फर्स्ट अपर चेम्बर दैट इज राइट एट्रियम. फ्रॉम हियर इट विल बी पम्प्ड अगेन टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. सो इन अ साइकिल blood travels through heart twice. That's why it's called double circulation. अब आगे बढ़ेंगे हम. फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन क्यों कहा गया है? यहाँ पर ह्यूमंस का है. इट गोज टू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स. दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. लेकिन फिशेस में क्या अलग होता है और उनमें डबल सर्कुलेशन क्यों कहा गया है, सिंगल सर्कुलेशन, वो उससे पहले हम डिस्टिंग्विश देख लेंगे बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ आपको, सोचो, पॉज करो, क्या क्या डिस्टिंग्विश हो सकता है. ज़रा मेंटली पॉइंट्स तैयार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. इस डायग्राम को देखकर 2 चीज़ें क्लियर हो जाती है. दैट आर्टरीज हैव थिक वॉल, WALS. वॉल्व अलग कंसेप्ट है, वॉल. Why arteries have thick wall and veins have thin wall? तो इसका आंसर अभी हम टेक्स्ट बुक में रीड करेंगे. Here it is. डिस्टिंग्विश के ये पॉइंट्स भी बनते जाएंगे. आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, राइट, टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सिंस ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. तो वापस एक बार ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है. Since blood emerges from the heart under high pressure, arteries have thick elastic walls and veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart, and then do not need thick walls because blood is no longer under pressure. Instead, they have valves that will ensure that blood flows only in one direction. तो valves की बात आए तो veins have valves because blood उतने pressure से flow नहीं हो रहा है
so it can flow in opposite direction as well. So to ensure that blood flows only in one direction, veins have valves. इसी पैराग्राफ को अभी हम डिस्टिंग्विश में समराइज करेंगे, और ये 1 मार्क क्वेश्चन एक इधर हुआ और इधर एक 2 क्वेश्चंस थे. That why ventricles have thick walls? Because they have to pump blood into various organs. And what is the function of walls? To ensure that blood does not flow backward. ठीक है, तो अब ये पैराग्राफ को ऊपर बेस्ड हम अब डिस्टिंग्विश पढ़ लेते हैं. Okay, so here is the distinguished points. Just read it out. Arteries carry blood away from the heart. Veins carry blood towards heart. Blood is under high pressure when it flows through arteries. Blood is under low pressure. Arteries have thick walls because blood is released from the heart with high pressure. Here veins have thin walls. Pulse flow, यहाँ पे smooth flow. Lumen आपको concept नहीं है. Arteries don't have any valves. Veins have valves. Blood rich in oxygen is in artery except pulmonary artery. Yes, याद है? Lungs, heart से lungs तक deoxygenated blood pulmonary artery carry कर रहे थे, so that is not rich in oxygen, and blood is poor in oxygen except pulmonary veins, right? और इधर एक और पॉइंट आ रहा है, वो है arteries are situated deep inside the skin. Arteries are situated deep inside the skin, but veins में भी peripheral, superficial भी होते हैं और deep inside the skin. So ये एक additional point था जो अभी cover हुआ. So even arteries, जैसे यहाँ पे बोला, they are situated deep inside the skin, but at some places in our body like wrist, neck, arteries are close to the surface of the skin and pass over bones. So we can feel the pulse at wrist and neck by pressing the artery lightly with our fingertips. Right? So this way we have finished with the distinguish between arteries and veins. इसके बाद जो कंसेप्ट आती है वो है कैपिलरीज की. अब कैपिलरीज की ये कंसेप्ट मैं आपको लिम्फ कंसेप्ट के साथ अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा. तो इसके बाद अब हम शिफ्ट होते हैं एक कंसेप्ट पर, दैट इज मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स. इस कंसेप्ट के बाद आता है एक और कंसेप्ट, दैट इज लिम्फ. तो लिम्फ पढ़ाते वक्त नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कैपिलरीज का टॉपिक भी क्लियर कर दूंगा. तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्लेटलेट्स की तरफ. व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, दैट इज आर्टरीज, वेसल्स, arteries and veins, develop a leak? Think about the situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to loss of pressure. We have a closed circulatory system. 9th में मैंने आपको बताया था कि हार्ट एक प्रेशर से ब्लड पंप कर रहा है, सारे वेसल्स से घूमकर वापस वो ब्लड हार्ट तक आ सकता है बिकॉज एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन्ड है. बट कहीं पे भी अगर लीकेज आ गया, ब्लड फ्लो होने लग गया, it could lead to loss of pressure which will reduce the efficiency of the pumping system. And to avoid this, the blood has platelet cells which will circulate around the body and plug these leaks. Means they will try to close that by helping to clot the blood at these points of injury. So एक image उसको लेकर just share कर देता हूँ. So here it is. सामने देख सकते हैं, it's a platelet in front of you, and when a message is sent that there has been a damaged blood vessel, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, it's an activated platelet now, which produces fibrin. It's a fibrous protein involved in clotting of blood. आपके information के लिए खाली. तो नीचे डायग्राम देख सकते हैं, platelets attached to the blood vessels. कहीं पे भी अगर लीकेज आने लगे तो ब्लड वेसल्स जब बाहर जा रहे हैं, प्लेटलेट्स अटैच टू द ब्लड वेसल वॉल्स एंड दे रिलीज फाइब्रिन विच इज़ अ फाइबरस प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग. और आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने प्लेटलेट्स रिलीज फाइब्रिन एंड सील द ब्लड वेसल वॉल. सो आपने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे ब्लड सेमी सॉलिड हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है. जैसे एग बॉईल करने के बाद कोएगुलेट होता है, इट्स कॉल्ड कोएगुलेशन. ध्यान रखना है वो पॉइंट. सो एक बार प्लेटलेट्स का सुन ले. दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट और वुंड and due to which further bleeding stops. So they make the blood semi-solid and all the blood cells are made in bone marrow. Okay, so this way
दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट विच ऑल्सो इज नाउ कवर्ड. अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, फिशेस की सर्कुलेशन में क्या फ़र्क है कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स. कैपिलरीज का पार्ट अगले सेशन में होने वाला है, डोंट वरी. नाउ इन ह्यूमंस द ब्लड ट्रांसफर्स और ट्रैवल्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस, करेक्ट. बट फिशेस में ऐसा नहीं है. सो अ क्लियर डायग्राम इज शोन हियर दैट, अब ये फ्लो चार्ट देखो जो फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है, सिंगल सर्कुलेशन इन फिश. जस्ट अ मिनट. So let's read what happens in fish. Fishes, on the other hand, have only two chambers to their hearts, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there, and passed directly to the rest of the body. Thus, the blood goes only once to the heart in the fish during one cycle of passage. तो वापस पढ़ो कि इनमें क्या होगा, blood will get oxygenated in the gills and is pumped to the rest of the body directly. तो अब ये कैसे है, ये समझने के लिए एक डायग्राम सामने ला देता हूं मैं आपके पहले. जस्ट अ मिनट. यहाँ पे नहीं हो रहा है. सो हियर इज अ डायग्राम, यू कैन सी इधर हार्ट प्रेजेंट है. एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट विल पंप दिस ब्लड टू द गिल्स. और हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, फिशेस टेक वाटर थ्रू देयर माउथ and pass it through gills, and gills is the place where there will be exchange of gases taking place. So जैसे हम humans में alveoli is the place in the lungs, so gills is the place where the oxygen from the water will be absorbed and the carbon dioxide from this blood will be given out. And now this oxygenated blood with that pressure will directly flow through the arteries to the rest of the body, and deoxygenated blood will be again brought to the heart. तो एक पूरे साइकिल में इनमें ब्लड एक बार ही हार्ट से फ्लो हो रहा है. देखो, हार्ट से शुरुआत की, गिल्स तक गए, वहाँ पे ऑक्सीजनेट हुआ, जिसके बाद हमारे बॉडी में वापस वो हार्ट तक आता था. लेकिन नहीं, यहाँ पर हार्ट का प्रेशर इतना काफ़ी है कि गिल्स से वो सीधा रेस्ट ऑफ द बॉडी तक जाएगा, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा हार्ट तक आएगा. सो एज यू कैन सी इन देम द ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ओनली वंस इन वन साइकिल. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन. और वही डायग्राम अब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ. जस्ट अ मिनट. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन ह्यूमंस व्हाट हैपेंस इज ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, फ्रॉम बॉडी इट अगेन कम्स बैक टू हार्ट, हार्ट विल पंप इट टू द लंग्स, एंड फ्रॉम लंग्स इट इज अगेन रिसीव्ड बाय द हार्ट. सो दैट मीन्स व्हाट, इन ह्यूमंस इन वन कंप्लीट साइकिल द ब्लड flows through heart twice. But in fishes कैसे होगा, heart will pump the blood to gills, gills के यहाँ पर वो oxygenate होगा, will be directly passed to all parts of the body, and from all parts of the body it will come to heart. In one cycle it travels through heart only once. So in then blood pressure drives the entire circulation. लेकिन यहाँ पर हम humans में blood को heart की तरफ आना पड़ेगा, so that it is pumped to all parts of the body. Getting? So same is the diagram जैसे अभी हमने ह्यूमंस के लिए पढ़ा था. यहाँ देख लेते हैं, हियर इट इज. तो अभी जैसे हमने डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस देखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो. इट स्टार्ट्स विद हार्ट, वेंट्रिकल, एट्रियम. वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड टू द गिल्स. गिल्स इज द प्लेस वेयर वाटर फ्रॉम फिश, वाटर विच फिश टेक्स इन, comes in contact with the gills. Here it gets oxygenated and will be sent to all parts of the body directly without coming back to heart. And here they have systemic circulation to all parts of the body, and from vein it is brought again to the heart, received by atrium. So I hope सबको अभी single circulation in fish समझ में आ गया है. In them it will travel through heart only once in one complete cycle. So ये images के जरिए ये part भी खत्म हो गया. And now we have most of the part is over. Transportation in human beings में पहले क्वेश्चन आएगा ब्लड के ऊपर, नोट्स में है, चेक कर लीजिए. सेकेंड विल बी फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट विथ डायग्राम. व्हाट इज डबल सर्कुलेशन विथ डायग्राम, डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. फिर प्लेटलेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन, और अब लिम्फ एक पार्ट और कैपिलरीज से जुड़ा हुआ एक पार्ट अगले सेशन में होगा. एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस द कंसेप्ट
व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, डॉक्टर्स ने जो भी एडमिट होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, तो ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।